ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਕਿ 37 ਪੈਨ ਹੈ, 53 ਪੈਨਸਿਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸਟ 320 ਪਈ ਤੇ 53 ਪੈਨਸ 37 ਪੈਨਸਿਲ ਹੋ ਗਈ। यानी कि पहला 37 ਪੈਨਸ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਫਿਰ 37 ਪੈਨਸਿਲ ਬਣ ਗਏ ਤੇ 53 ਪੈਨਸਿਲ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ 53 ਪੈਨਸ ਬਣ ਗਏ। ਨੰਬਰ ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ ਨੇ, ਬਸ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਸੇਮ ਹੈ ਹੀ, 5 kg ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ, 7 kg ਰਾਈਸ है। देखो 5 kg शुगर, 7 kg राइस, फिर 7 kg शुगर हो गया, 5 kg राइस, 7 5 दोनों सेम टू सेम रहे। थर्ड क्वेश्चन देख लो, 11 पेन 19 पेंसिल, फिर 19 पेन्स 11 पेंसिल। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆ ਜਾਣ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਟਰਮਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨਾ ਕਿ ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਟਰਮਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਹੋ ਕੇ, ਤਦ ਇੰਨਾ ਸਮਝ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੇ ਅਲੱਗ ਹੈਗਾ ਵੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ 'ਤੇ ਪੈਣਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ ਉਹ ਵੇ। ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨਸ 'ਤੇ ਉਹ ਵਾਲਾ ਵੇ ਲਗਾਉਣਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ, ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। 37 ਪੈਨ ਹੈ, 53 ਪੈਨਸਿਲ ਹੈ, ਟੂਗੈਦਰ ਕੋਸਟ ਕਰਨੀ ਹੈ 300 ਵੀ। ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਪੈਨ ਤੇ ਪੈਨਸਿਲ ਨੂੰ ਐਕਸ ਵਾਈ ਲੈਟ ਕਰ ਲਓ। ਪੈਨ ਐਕਸ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵਾਈ ਹੈ। ਤਾਂ 37 ਪੈਨ ਨੇ, 53 ਪੈਨਸਿਲ ਨੇ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਟੋਟਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈ ਗਿਆ, 320 ਦਾ ਪੈ ਗਿਆ ਫਸਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ। ਸੈਕਿੰਡ 53 ਪੈਨ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ 53 ਐਕਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ 37 ਵਾਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਦ ਪੈ ਰਿਹਾ 400 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਦੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੇ, ਦੋਨੋਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕॉस्ट फाइंड करो एक पेन ਤੇ ਇੱਕ ਪੈਨਸਿਲ ਦੀ, यानी कि एक्स ਤੇ वाई फाइंड करना है। कंडीशंस बन गई दोनों, ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਲੈਟ ਪੈਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ एक्स रुपीज़ ਦਾ, ਪੈਨਸਿਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ वाई रुपीज़ ਦੀ ਹੈ। फर्स्ट कंडीशन की बन जाएगी 37x + 53y = 320। सैकेंड कंडीशन बन जाएगी 53x + 37y = 400। दो कंडीशनां बन गई। ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਮ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ ਪਲੱਸ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ ਮਾਈਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹੀ ਦੋ ਜੋ 1 ਤੇ 2 ਬਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਈਨਸ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਨੰਬਰ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਉੱਪਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਵਾਲਾ ਥੱਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ 1 + 2 ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 37 + 53 320, 53 + 37 400। ਜਦੋਂ ਪਲੱਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਦ ਸਾਈਨ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਰਹਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਪਲੱਸ ਦੇ ਕੇ ਪਲੱਸ ਹੀ ਆ, ਪਲੱਸ ਦੇ ਕੇ ਪਲੱਸ ਹੀ ਆ, ਪਲੱਸ ਦੇ ਕੇ ਪਲੱਸ ਹੀ ਆ। 37 + 53 ਹੁੰਦਾ 90, ਤਾਂ 90x ਉਹੀ 37 ਤੇ 53 ਅਗਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ 53 ਤੇ 37 ਵੀ ਉਹਨੇ ਹੋਏਗਾ 90y। 320 ਤੇ 400 ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 720 ਬਣ ਗਿਆ। 90x 90y 720। ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਦੇਖੀਏ, 90 ਕਾਮਨ ਹੈ, 90 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਅੰਦਰ ਕੇ ਬਚ ਜਾਏਗਾ x ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਚ ਜਾਏਗਾ y। x + y ਇਹ ਬਚ ਗਿਆ। 90 ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ, ਫਿਰ 90 ਇੱਧਰ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਡਿਵਾਈਡ, 0 ਨਾਲ 0 ਕੈਂਸਲ, ਤਾਂ 9 ਤੇ 72 ਰਹਿ ਗਏ। 9 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ 72 ਆਉਂਦਾ 8 ਤੇ, ਤਾਂ x + y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ 8। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਸਟ ਸਟੈਪ ਐ ਸੀਗਾ, ਪਲੱਸ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੈਪ ਸੀ ਮਾਈਨਸ, ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਉਹੀ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਜੋ ਵੱਡੀ ਟਰਮ ਉਸ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ 2 - 1 ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ। ਠੀਕ ਹੈ, 53x + 37y 400, 37 ਤੇ 53 320। 53 ਚੋਂ 37 ਗਏ 16 ਬਚ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਉਹ ਸਾਈਨ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਪਲੱਸ ਦਾ ਮਾਈਨਸ, ਤਾਂ 37 ਤੇ 53 ਵੱਡੀ ਟਰਮ ਹੈ। याद रखना जो वड्डी टर्म के अगे अगर माइनस हो, माइनस एडे अगे ही है 53 के अगे, तो आंसर च भी माइनस बनता है वै। तो 53 तो 37 ਨੂੰ माइनस करके बनता जरूर 16 ही है, लेकिन प्लस या माइनस का वो कि उत्ते डिपेंड करेगा जो भी टर्म वड्डी है। इत्थे 53 वड्डा सीगा 37 तो 53 अगे कोई निशान नहीं, यानी कि प्लस सी, तो 16 अगे भी प्लस है या कोई निशान नहीं है। 53 तो 37 ये 53 वड्डा है, लेकिन 53 अगे की है माइनस, तो -16y बनया। फिर 400 चो 320 गए तो 80, 16x - 16y = 80 बन गया। 16 दोनों चो कॉमन निकल सकता है, 16 ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਾਂਗੇ, 16 ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, x - y = 80, 16 ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ, ਤਾਂ 16 ਤੇ 80 ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ 5 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ, ਅਗਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿਖਾ ਵੀ 16 5 6 5 ਦਾ 30, 5 ਦਾ 5 6 7 8, ਤਾਂ 80 ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ 16 ਤੇ 5, 16 ਤੇ 80 ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ 5 ਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, x + y, x - y। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਉਣਾ। ਸੇਮ ਚੀਜ਼, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਵੀ ਆਈ ਸੀ, ਜੋ ਦੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨਾਂ ਸੀ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਲੱਸ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਪਲੱਸ ਕਰਾਂਗੇ, x + y = 8, x - y = 5, x + x 2x। ਹੁਣ एक y प्लस ਦਾ, दूसरा y ਕੀ ਸੀ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਸੀਗਾ, है ना, तो y - y 0 बन जाएगा। तो 8 + 5 13, 2x = 13,
एक्स की वैल्यू आ जाएगी 13/2 कटिंग करांगे 6.5 अगर कटिंग कहते सॉरी डिवाइड करांगे दिखा भी देना वा 2 13 ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 6 ਦੇ 12 ਆਉਂਦਾ 1 ਬਚ ਗਿਆ ਪੁਆਇੰਟ ਲਗਾਵਾਂਗੇ 0 ਬਣ ਜਾਏਗਾ 10 ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦਾ 5 ਤੇ ਤਾਂ 6.5 ਇਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ 3 ਸੇਮ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਮਾਈਨਸ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਵਾਂ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੱਡੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ x + y = 8 x - y = 5 ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਈਨ ਚੇਂਜ प्लस का से माइनस बन गया x - x 0 प्लस होने का साइन चेंज हो गया तो यह भी प्लस का बन गया माइनस तो प्लस का प्लस y 2y बन गया 8 - y 3 2 ਨੂੰ डिवाइड कराया y = 3/2 यानी y की वैल्यू 1.5 इस च सानू वैल्यू पुट करने की नीड नहीं पई जो असी पिछले सम्स दे विच वैल्यू पुट करते थे ना इधरों उधरों या उधरों इधरों वो नीड नहीं पई ਇਹਦਾ ਵਿੱਚ ਕੀ है बस दोनों प्लस दोनों माइनस जो इक्वेशन बनी उन्होंने दोनों ਨੂੰ भी प्लस दोनों ਨੂੰ माइनस आंसर डायरैक्ट आ जाएगा वेरीफिकेशन कर लेंगे वेरीफिकेशन किस तरह करांगे दोनों इक्वेशन लिखी हैं जो भी सीखियाँ उस तो बाद मल्टीप्लिकेशन ऐसी मल्टीप्लिकेशन वेरीफिकेशन करने थोड़ा टाइम लगता है लेकिन प्लीज़ करना जरूर ताकि तुहाडा क्वेश्चन गलत ना चल जाए 37 ਨੂੰ 6.5 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 53 ਨੂੰ 15 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿतना भी होया ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ अगर मैं देखा 37 ਨੂੰ 6.5 ਨਾਲ अगर ਇਹ देखो 37 ਤੇ 65 कितने ਹੋਏ ਨੇ 7 5 ਦਾ 35 5 3 ਦਾ 15 16 17 18 तो 18 आ गया मल्टीप्लाई 7 6 ਦਾ 42 2 ਇੱਥੇ ਤੇ 4 ਉੱਪਰ 4 ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ 6 6 ਦਾ 18 18 + 4 22 ਤਾਂ 2 2 5 ਇੱਦਾਂ ਹੀ 8 2 10 1 ਉੱਪਰ ਤਾਂ 2 + 1 3 3 + 1 4 4 ਤੇ 2 2 4 0 ਤੇ 5 ਸੀਗਾ ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ 6.5 ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਥੇ ਹੋਏਗਾ ਸਾਰੇ ਕਿੰਨੇ ਟੋਟਲ ਡਿਜਿਟ ਸੀ 1 2 3 4 तो पॉइंट तो पिछे सिर्फ एक ही डिजिट सी तो आंसर च भी पॉइंट तो पिछे सिर्फ एक ही डिजिट होएगा तो एक डिजिट बाद असी पॉइंट लगाया ठीक है 240.5 सेम इन्हों भी मल्टीप्लाई करांगे इन्होंने दोनों मल्टीप्लाई किया 53 तो 1.5 ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੀਤਾ 5 6 15 ਇਹਦਾ 795 बन रहा सी पॉइंट एक ही है तो पॉइंट 79.5 बन जाता दोनों ਨੂੰ प्लस करते हैं तो 320 ही बनता हैगा वा सेम ਇੱਥੇ ਹੁਣ दोनों की वेरीफिकेशन ਇਹ ਤੁਸੀਂ आप ही करनी है इस तरह मैं वेरीफिकेशन ਹੁਣ एक्सप्लेन नहीं करांगा बहुत क्योंकि मल्टीप्लिकेशन ही है मल्टीप्लिकेशन ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਨੀਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਾਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ 5 kg ਸ਼ੂਗਰ 7 kg ਰਾਈਸ ਦੀ 153 ਤੇ ਸੇਮ ਕਾਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ 7 kg ਸ਼ੂਗਰ ਤੇ 5 kg ਰਾਈਸ ਦੀ 147 ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲਓ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ x ਤਾਂ 5x + 7y 153 यानी 153 ਤੇ ਕਾਸਟ ਆਫ ਸ਼ੂਗਰ 7x ਤੇ ਰਾਈਸ ਦੀ 5y = 147 दो इक्वेशन बन गया दोनों प्लस दोनों माइनस कराना बस ऐसे देखो मैं लिखिए 5x + 7y 153 7x + 5y 147 ठीक है ਇਹਨੂੰ कितना हम लगे खोल के देखते हैं की बनेगा तो 5x + 7y 153 है 7x + 5y 147 है दोनों प्लस करो ਇੱਥੇ दोनों माइनस कराया ਹੁਣ माइनस ਚ भी देखो 1 - 2 लिखा मैं क्यों क्योंकि 153 वाली टर्म वड्डी है 147 तो 153 ऊपर रहना चाहिए प्लस करावांगे कोई साइन चेंज नहीं 7 + 5 12 7 + 5 12 153 + 147 300 12 दोनों च कॉमन से 12 बाहर x + 5 अंदर 12 ਨੂੰ कराया डिवाइड तो 300 ਨਾਲ डिवाइड करांगे 300 अगर इनू देखो 12 ਤੇ 300 ਸੀ 12 2 * 24 6 बच गया 6 ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ 0 12 5 * 60 ਤਾਂ 25 आ गया x + y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ 25 सेम माइनस करावांगे 5 - 7 ਹੁਣ देखो 5 - 7 ਵੱਡਾ ਕੌਣ ਹੈ 7 ਤਾਂ 7 ਚੋਂ 5 ਹੀ ਕੱਢਾਂਗੇ 2 ਬਟ ਵੱਡਾ ਜੋ ਸੀਗਾ 7 ਸੀ 7 ਦੇ ਕੀ ਕਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਤਾਂ -2 ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ -2x ਇੱਧਰ ਕਰਾਂਗੇ 7 - 5 ਤੇ ਹੈ 7 - 5 ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ +2 2y ਤੇ 153 - 147 6 ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਧਰ -2x ਹੁਣ 2 ਤਾਂ ਕਾਮਨ ਹੀ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਅੰਦਰ ਕੀ ਬਚ ਜਾਏਗਾ ਇੱਕ ਹੈ ਮਾਈਨਸ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈ x ਤਾਂ -x ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਚੇਗਾ +y = 6 2 ਨੂੰ दूसरी साइड भेजा डिवाइड करावांगे 6/2 कटिंग होएगी 3 तो -x + y = 3 दो अपनी इक्वेशन बन गया दोनों प्लस दोनों माइनस कराना है x + y 25 -x + y 3 पहला प्लस करावांगे सेम साइन आ जाएगा x - x 0x y + y 2y 25 + 3 28 दोनों डिवाइड करा दो 28/2 y की वैल्यू आ गई 14 सेम इधर भी माइनस करावांगे हम x + y 25 -x + y 3 सी हूँ लेकिन साइन चेंज हो गए माइनस जी का प्लस बन गया था x + x 2x y - y 0y
25 माइनस 3 22 तो उन्होंने डिवाइड करा दो 22/2 11 तो एक्स की वैल्यू आ गई 11 तो ਹੁਣ क्वेश्चन लेकिन एंड नहीं होया क्वेश्चन अगर ਅਸੀਂ पूरा पढ़िए उन्होंने क्या फाइंड द कॉस्ट ऑफ 6 kg शुगर एंड 10 kg राइस उन्होंने 1 किलो तो वह पूछा ही नहीं सीगा ठीक है इधर हम फर्स्ट क्वेश्चन तो की सीगा फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेन एंड पेंसिल तो ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੈਨ ਐਂਡ ਪੈਨਸਿਲ ਦੀ ਕੋਸਟ ਕੱਢਦੇ ਸੀ ਕਿ x यानी कि x किसी का पेन ਤਾਂ ਪੈਨ ਦੀ ਕੋਸਟ 6.5 ਹੈ ਪੈਨਸਿਲ ਦੀ ਕੋਸਟ 1.5 ਹੈ ਬਟ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਰਾਈਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ 1 ਕਿਲੋ ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 6 kg ਸ਼ੂਗਰ ਤੇ 10 ਕਿਲੋ ਰਾਈਸ ਦਾ ਕੋਸਟ ਪਤਾ ਕਰੋ ठीक है तो 6 kg राइस किन्ने होंगे 6 kg अगर असी देखिए अच्छा मैं हूँ नैक्सट पेज से लिखे एक मिनट सॉरी मैं मिसप्लेस हो गया रहा सॉरी 6 kg शुगर 10 kg राइस 6 kg शुगर यानी शुगर किसी x तो 16 x लिखना है अगर मैं इक्वेशन लिखा 6x प्लस 10 kg राइस तो यानी 10y x की वैल्यू 11 है तो 6 × 11 66 10 × y 10 × 14 140 दोनों ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਲੱਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 206 ਬਣ ਜਾਂਦਾ 140 ਚੋਂ 66 ਐਡ ਕਰੇ 066 4010 ਤੇ 206 ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵੇ ਇਸ ਦਾ 6 kg ਸ਼ੂਗਰ ਟੈਸਟ 10 kg ਰਾਈਸ ਦੀ ਕਾਸਟ ਇੰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਅਸੀਂ x ਤੇ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹੀ ਦੋਨੋਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ 5x + 7y 153 7x + 5y 147 एक की वैल्यू x की वैल्यू 11 y की 14 5 × 11 55 7 14 अगर करिए तो इतने मैं देख लेना 14 7 7 4 28 7 7 8 9 98 आ गया दोनों प्लस किया 153 बनता यानी कि करेक्ट है वह सेम उस तरह इधर भी 7 × 11 5 × 14 तो 147 है 7 11 77 14 5 70 तो 47 70 77 प्लस कितने 147 बन जाएगा यानी कि वेरीफिकेशन सही है आंसर साडा करैक्ट निकलिया ठीक है हम लास्ट सम इस टाइप का लास्ट सम अगर असी करिए इफ 11 पेन्स एंड 19 पेंसिल्स टुगैदर कॉस्ट 502 हम पेन तो पेंसिल सेम वही गल की कॉस्ट 502 है 19 पेन तो 11 पेंसिल होंगे तो 758 है 3 पेन तो 6 पेंसिल्स की कॉस्ट पता करनी है एक पेन एक पेंसिल नहीं 3 पेन 6 पेंसिल तो क्वेश्चन सेम ही है सेम तरह ही होना है वह लास्ट इस बस मल्टीप्लाई कर देंगे क्वेश्चन है इसकी अगर असी कंडीशंस देखिए कंडीशंस किस तरह बनेगी 11 पेन 19 पेंसिल टुगेदर 502 यानी कि 11x प्लस 19y इज इक्वल्स टू 502 फर्स्ट कंडीशन बन गई सेकंड कंडीशन 19 पेन 19x प्लस 11y इज इक्वल्स टू 758 दोनों कंडीशन इतने सामने सामने बन गई हैं दोनों कंडीशन सॉल्व करो एक्स वाई की वैल्यू कढो फिर इस पुट कर देनी हैगी है सिंपल जहा काम है वह करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन देखते हैं कितने है एर थर्ड पेन नो एक्स लेट किया पेंसिल की कोस्ट नो वाई लेट किया दोनों इक्वेशन लिखनी 11x + 19y जो पीछे लिखिया वही सेम इक्वेशन इतने लिखनी है स्टैप तो पता दोनों प्लस करना है दोनों माइनस करना माइनस विच जो वड्डी टर्म होगी वो अगे तो 11x 19y 502 तो 19 11 758 प्लस किया 11 19 प्लस करांगे तो 30 बन जाएगा 11 1 ते 1 ते 9 10 1 कैरी तो 1 + 1 + 1 3 30x सेम इसी तरह अभी 30y इन्होंने प्लस करेंगे 8 2 10 5 ते 1 6 तो 5 6 12 12 60 3 बाहर कढ़िया x + y बच गया 3 डिवाइड करा देंगे 1260 3 नाल डिवाइड करावांगे हम 0 नाल 0 कैंसल कर सकते हैं 0 नाल 0 कैंसल 3 ते 126 रहे 3 ते 126 अगर कट करांगे तो 126 3 4 3 12 6 बच गया 3 2 6 तो 42 आ रहा है x + y की वैल्यू 42 है सेम हम इन्होंने माइनस कर दिए 2 - 1 करिए तो 19x 11y 758 है 11x 19y 502 है माइनस कर देंगे ऐसा प्लस जगह माइनस प्लस जगह माइनस प्लस जगह माइनस ठीक है 19 चो 11 गए 8x हम 11 चो 19 गए 19 वड्डी टर्म हैगी है तो 19 के अगे लग गया -19 + 11 ठीक है यहो जी चीज़ कुछ होंगी नहीं है बट असी यही करना 19 चो 11 निकाल लें तो कितना बन जाता 8 तो माइनस -8 आ जाएगी चीज़ -8y तो इन्होंने दोनों माइनस किया 8 चो 2 गए 6 5 चो 0 गया 5 7 चो 5 गए 2 तो 256 8 कॉमन कढ़िया अंदर के बच जाएगा x - y 8 कितना डिवाइड 256 डिवाइडेड बाय 8 तो असं चेक कर लें 8 डिवाइड बाय
256 ਤਾਂ 8 3 24 ਤੇ 1 ਤੇ 6 ਤੇ ਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 8 2 60 ਤਾਂ 32 ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ x ਮਾਈਨਸ y ਇਹ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਦੋਨੋਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈਆਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਦੋਨੋਂ ਪਲੱਸ ਦੋਨੋਂ ਮਾਈਨਸ, ਸੇਮ ਸਟੈਪ ਅਗੇਨ ਐਂਡ ਅਗੇਨ। ਤਾਂ x plus y is equals to 42, x minus y is equals to 32, x ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਪਲੱਸ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ x plus x 2x, y ਤੇ minus y 0y, 42 plus 32 74, 2x is equals to 74, 2 ਜਾਏਗਾ डिवाइड होएगा तो 74/2 37, x की वैल्यू 37 आ जाएगी। सेम माइनस करांगे x plus y is equal to 42, x minus y is equal to 32, माइनस करांगे तो इतने कोई निशान नहीं सी, माइनस माइनस जगह प्लस, माइनस प्लस की जगह माइनस, तो x minus x 0x, y plus y 2y, तो 42 minus 32 10, 2y is equal to 10, y की वैल्यू 10/2 5, तो x की वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू मिल गई, दोनों असी की कहते हैं वेरीफाई कर दिया पहला। कंडीशन है सीगियाँ, एक की वैल्यू 37, एक की वैल्यू 5 है, तो 11x 19/502, x की वैल्यू 37 है, 37 ਨੂੰ 11 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਵੀ 7 1 7 3 1 3 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 7 1 7 3 1 3, तो 7 7 3 10 ਤੇ 3 1 4 407 407, 19 × 5 19 × 5 करांगे, 19 × 5 है 9 5 है 45, 5 1 5 6 7 8 9 95 बन गया। दोनों ਨੂੰ प्लस किया 502, यानी कि सही है। सेम इतने भी वही चीज़ करांगे, 19 ਨੂੰ 37 ਨਾਲ करांगे 703, 11 ਨੂੰ 5 ਨਾਲ 55, दोनों प्लस किए 758, कंडीशन सैटिस्फाई करके वेरीफाई हो गए। यानी कि एक्स ਤੇ वाई ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ कॉस्ट है, यानी कि यह पेन की कॉस्ट है, यह पेंसिल की कॉस्ट है, ठीक है। उस तो बाद उन्होंने एक होर चीज़ दसी सी, वो मैं इतने सॉल्व करना भुल गया, मैंने ध्यान ही नहीं रहा। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ भी यही चीज़ मेनली हो सकती है, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ एक चीज़ कर लियो उस तो बाद भुल ही जाता बंदा कि एक होर भी कटनी सी चीज़, ठीक है। मेरे नाल आया होया ਤੁਸੀਂ पेपर 'ਚ ना करना है चीज़, तो वही ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ही सॉल्व कर दिया गया। 3 पेन 6 पेंसिल, ठीक है, यानी कि 3 पेन 6 पेंसिल्स। एक्स की वैल्यू कितनी है 37, 3 मल्टीप्लाई बाय 37 प्लस 6, वाई की वैल्यू कितनी है 5, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 5, 37 3 था, मल्टीप्लाई करके देख लो 37 3 7 3 21, 3 3 9 10 11, ठीक है। 1 1 1 प्लस 6 5 30, 111 तो 30 प्लस करेंगे, 1 तो 0 प्लस हो 1, 1 तो 3 प्लस हो 4, तो 1 देते हैं 141 आंसर होएगा साडा। कि अगर उसने 3 पेन तो 6 पेंसिल ली तो 141 रुपये खर्चे, ठीक है। इस तरह साडा ए वाला पार्ट डन हो जाता है। हुण 5th टाइप की गल अगर असीं देखिए, 5th टाइप किहो जिहा हैगा वा, 5th टाइप एजिज वाले क्वेश्चन है। एजिज वाले क्वेश्चन सब तो ज़्यादा चांसिस होंगे एज वाले ही क्वेश्चन आ जाए पेपर दे विच, अगर ए ना तो सब तो ज़्यादा चांस दूसरा जो हैगा वा, अगर मैं दिखावा जो सब तो मतलब कि ए ज़्यादा चांस तो ज़्यादा मैं कहूँगा जो सब तो ज़्यादा मार्क्स दे विच आते हैं, 4 4 5 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते वो यहो जे ने, या 6 6 मार्क्स भी होंगे कई बार। तो ए वाले या तो डिजिट्स वाला, डिजिट रिवर्स करना है वो करना, ए सारे डिजिट्स वाले क्वेश्चन ने, या असी कह लिए जो मैं इतने दिखाया एजिज वाले क्वेश्चन, ए सब तो ज़्यादा मार्क्स दे विच आने वाले क्वेश्चन ने, सारे एजिज रिलेटेड है। हुण इन्हां नूं करना कितना हैगा वा वो मैं दसांगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन देख लेंगे, पहला की है कि सम ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ सुरेश एंड हिज मदर इज 89 ईयर्स, आफ्टर 11 ईयर मदर एज विल बी ट्वाइस सुरेश एज, आगे नैक्सट पेज लिखा फाइंड देयर एजेस, ठीक है। हुण इस चीज़ को पहले समझते हैं लिखिया की है, बच्चों को यही नहीं समझ लगेगा कि लिखिया की है। जो यही चीज़ समझ नहीं आ रही तो फिर इक्वेशन किद्दां बनणगियां। तो पहला तो सानू की किहदी एज बारे दस्सिया, एक तो सुरेश की गल की, एक वो मदर की गल की है। सुरेश नूं मान लो कि एक्स है, वो मदर नूं मान लो वाई है, एज हजे दी एज जो है। फिर उन्होंने क्या सम अगर कर दिए हजे दी एज का, प्रेजेंट मतलब हजे दी एज का सम कर दिए कि सुरेश तो वो मदर की एज का, ठीक है। सुरेश तो मदर, सुरेश एक्स है मदर वाई है, तो प्रेजेंट यानी कि हजे की ही एज कोई अगे पिछे करो उन्होंने क्या, तो एक्स प्लस वाई कर दिए तो टोटल होंगे 89, टोटल 89 ईयर बनती है एज, दोनों की एजा प्लस कर दिए। फिर उन्होंने क्या तैं साड़ी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। फिर उन्होंने क्या 11 ईयर बाद, आफ्टर 11 ईयर बाद, हम 11 साल बाद की गल अगर कर रहे हैं तो सुरेश की एज की हो जाएगी एक्स प्लस 11, तो मदर की एज भी वाई प्लस 11 हो जाएगी। 11 साल बाद की गल करिए है ना, तो उन्होंने क्या आफ्टर 11 साल मदर एज विल बी ट्वाइस सुरेश एज, तो उन्होंने क्या 11 साल बाद मदर की एज की है वाई प्लस 11, तो वाई प्लस 11 लिखो पहला। फिर विल आ गया इज इक्वल टू विल बी ट्वाइस, यानी कि 2 टाइम्स,
ਸੁਰੇਸ਼ ਦੀ ਏਜ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ x+11, ਤਾਂ x+11 ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਗਈ ਕਿ 11 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 11+11 ਸੁਰੇਸ਼ ਦੀ ਮਦਰ ਜੋ ਹੈ 11 y+11 ਟਵਾइस हो जाएगी, 2 टाइम्स का 2 टाइम्स कि सुरेश दी एज कितनी है x+11। बस हूँ इक्वेशन बन गई है। दो इक्वेशन साढ़े तो है, एक क्या इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन तो सॉल्व करना है। ठीक है, हूँ यही मैं तुम्हें दिखाना वा किस तरह सॉल्व होएगा। पहला तो ही कि इतने मैं 2 कॉलम बना देते हैं, एक बनाता प्रेजेंट एज का कि सुरेश की हजे एज है और मदर की एज y है, x तो y आफ्टर 11 साल। उन्होंने आफ्टर 11 साल की गल की थी, तो सुरेश की एज 11 साल बाद की हो जाएगी x+11 और मदर की एज y+11। पहली कंडीशन किसी दोनों का सम प्रेजेंट एजिस का 89 है, तो x+y 89। फिर क्या से उन्होंने 11 साल बाद सुरेश की मदर की एज ट्वाइस हो जाएगी ये, तो 11 साल बाद तो y+11 ट्वाइस कि सुरेश की एज तो x+11। दो आ गई क्वेश्चन। हम दोनों पहला अगर असी देखिए जो चीज़ तो मैं समझाई हुई है कि किस तरह सम्स हो सकते हैं, तो उस सब तो मेन चीज़ पहली चीज़ यही दसी सी कि मैं कि देख लो x ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ 1 y ਦੇ ਨਾਲ 1 ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ x ਦੇ ਨਾਲ 1 y ਦੇ ਨਾਲ 1 ਕੋਈ ਵੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ y ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ, y ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ, x ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਭੇਜਤਾ, ਤਾਂ y = 89 - x। ਠੀਕ ਹੈ, y ਹੈ ਉਹੀ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ। y+1 ਸੀਗਾ, ਇਹ y+11 ਸੀਗਾ, ਸੌਰੀ y+11 ਸੀਗਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ y ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ 89 - x, ਤਾਂ 89 - x प्लस 11 से तो 11 = 2x+11 वो उधर होता ही 89। x की जगह की पुट किया, x की जगह कुछ नहीं उधर उधर ही रखे, 11 ਨੂੰ बस इत्थे ले आए +11 से मतलब नाल ही रखे कुछ नहीं, -x इधर उधर, तो 89 + 11 कितना हो जाएगा 100 तो -x होता ही। उस तरह इतने 2 ਨੂੰ x ਨਾਲ मल्टीप्लाई किया 2x, तो 2 ਨੂੰ 11 ਨਾਲ किया 22, तो 100 - x = 2x + 22। x वाले एक साइड कर दो, नंबर वाले इधर, तो -x उधर जाएगा, +x 22 प्लस इधर आएगा तो माइनस, तो 100 - 22 तो 2x + x 3x, तो 100 - 22 78 होता है। 3 ਨੂੰ कर दो डिवाइड, तो 78/3 डिवाइड होएगा 26 आ जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 26। x की वैल्यू आ गई, किसी चो भी तीनों चो पुट कर दो। हम मैं इस करते सब तो सौखी लग रही है x + y = 89, x 26 है, y पता नहीं, y ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖੋ 26 माइनस हो जाएगा 89 - 26 63 आ गई एज y की 63। x सुरेश की एज सी, y ਉਹਦੀ मदर की एज सी, तो सुरेश 26 साल का, उसकी मदर 63 साल की हैगी है, या तुम कह लो 63 ईयर्स की हैगी। वेरीफाई करना होवे दोनों कंडीशन है x + y 89, y+11 2x + 11, तो जो पुट करा x की जगह 26 y की जगह 63, तो 89 बन रहा। y की जगह इतने पुट करता 63, x की जगह 26, तो 63 + 11 74, तो 26 + 11 कितना होता है 6 च 1 प्लस किया 7, 2 च 1 प्लस किया 3, तो 37 टू 74, तो साढ़े कंडीशन सैटिस्फाई कर गई। तो सुरेश की एज तो उसकी मदर की एज आ जाती है इस तरह साढ़े तो। ठीक है, हूँ नैक्सट क्वेश्चन है वै, नैक्सट क्वेश्चन भी यही है, मैन सन एज, दोबारा वही सेम टाइप के क्वेश्चन ही आने ने, इतने भी 5 साल तो बाद तो सब चीज़ा चलती हैं। एक